بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کے ساتھ کہ آپ تشریف لائے. یہاں پاکستان میں ہم اکثر کہتے ہیں پاکستان ایک ایگریکلچر اکانومی ہے، اور میں سندھ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں پورے کی. ایگریکلچر اکانومی جس میں 60 سے 70% لوگ زراعت پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور ملک پاکستان کو را مٹیریل بھی فراہم کرتے ہیں اور ایکسپورٹ بھی کر کے پیسے کما کے بھی دیتے ہیں. میں آخر کار کہہ دو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ مجبوراً میں آنا پڑا پریس کے سامنے کہ یہاں 2 سال سے کاشتکار مصیبت کا شکار ہے. پچھلے سال بھی موسمی حالات کی وجہ سے فصلوں کو بھی نقصان ہوا، اور پتہ یہ چلا کہ پاکستان میں ایگریکلچر گروتھ جو ہے وہ -3%. تو میں سوچا تھا کہ -3% اگر ہیں، انڈیکیٹر ایسے دکھاتے ہیں، تو وفاقی حکومت اس کی طرف تھوڑی سی توجہ دے گی اور اسباب ڈھونڈے گی کہ وہ کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے اس طرح سے نیگیٹو ٹرینڈ چل رہے ہیں. مالا مال ہے سندھ پاکستان قدرتی وسائل کے طور پر. پانی کی اکثر شکایت ہوتی ہے، لیکن پھر کہتے ہیں کہ اللہ کرے پانی اتنا بڑھ نہ جائے، یعنی پانی بھی ہے. تو پھر کیا باتیں ہیں کہ جی کاشتکار رونے پر آتے ہیں، پیٹنے پر آتے ہیں. مجھے معلوم نہیں ہے پنجاب کا، لیکن سندھ کے ہر ضلع میں احتجاج کے طور پر لوگ آ رہے ہیں روڈوں پر. روڈوں پر لوگ آ رہے ہیں کہ ہمیں فیئر پرائس نہیں ملتا. جو آج کل کا فصل ہے وہ ہے پیڈی، جس سے پھر چاول بنتا ہے، جس سے پھر چاول مارکیٹ میں آتا ہے، یا جس سے پھر چاول ایکسپورٹ ہوتا ہے. سندھ ہو، پنجاب ہو، کوش ویرائٹی ہو یا فائن ویرائٹی ہو، یہ ساری ایکسپورٹ ہوتی ہیں. یہ سب ہمیں پتہ ہے کیسا ہوتا ہے. لیکن حکومت سے ان کا ڈیمانڈ ہے کہ جی کوئی پیڈی کی پرائس مقرر کرو، کیونکہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ بہت مہنگی ہے. فرٹیلائزر 14,000 روپے ڈی اے پی ملتا ہے، 5,000 روپے کا یوریا ملتا ہے بیگ، پھر ٹریکٹر چلانا ہوتا ہے، پھر آبادی کے لیے اخراجات ہوتے ہیں. کرتے کراتے آبادگار اکثر قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر آخر میں جب حساب ہوتا ہے تو وہ کپڑے جھاڑ کے اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو بچتا کچھ نہیں ہے. یہ صرف سندھ کا معاملہ نہیں ہے، سارے ملک کا ہوگا. ہو سکتا ہے فائن رائس والوں کو کوئی بہتر پرائس ملے، لیکن بلوچستان والے بھی ایسے ہی چلا رہے ہیں. بلوچستان والے بھی ایسے ہی چلا رہے ہیں کہ ہمیں 2 سال سے کہیں کا نہیں رکھا حکومت نے، اور ہم سفر کر رہے ہیں. IMF کا بہانہ بنا کے ہمیں فرٹیلائزر پر سبسڈی نہیں دی جاتی، اور مارکیٹ میں اگر جاؤ تو سیٹھ صاحبان اپنی مرضی کرتے ہیں. سیٹھ صاحبان ایکسپورٹ کے لیے وقت سے پہلے، فصل اترنے سے پہلے بہت سے ملکوں کے ساتھ اپنے معاہدے کر لیتے ہیں، لیکن قوم کو بتایا نہیں جاتا کہ کتنے میں معاہدہ ہوا، چاول کی کیا ریٹ بنے. اور پھر جب مارکیٹ میں لے کے جاتا ہوں وہ پیڈی، تو اپنی منمانی ہوتی ہے، اور منمانی کر کے
ہمیں کبھی کٹوتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ 4 کلو پر منڈ، اور کبھی رقم اپنی طور پر شروع میں اٹھتے ہوئے بتایا کہ جی 3400 کا من بک رہا تھا، جب فصل جیسے ہی لگنے لگی، اترنے لگی، تو ریٹ ہو گیا 2200۔ اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اٹھتے ہوئے 3000 سے اوپر کیوں تھا۔ پاکستان بھی وہی ہے، پیڈی بھی وہی ہے، اور پھر جب شروع ہو جاتی ہے فصل تو رقم اتار دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں۔ یہ مافیا، یہ جوائن کر کے ایک ہی ریٹ پر مجبور کرتے ہیں غریبوں کو کہ بیچیں۔ ڈپارٹمنٹ کہتی ہے کہ 65% آف کاشتکار 65% آف کاشتکار صرف 25 ایکڑ کے مالک ہیں، 35% اس سے بڑی اراضی کے مالک ہوں گے، لیکن 65 میجارٹی ہے۔ اور 25 ایکڑ کی کاشت کرنے والا انتظار نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے قرضے اٹھائے ہوتے ہیں اور ان کو فیس کرنا ہوتا ہے ان قرضے جات کا۔ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک سست روی کا شکار، دوسرے بینکیں بھی سست روی کے شکار، سیٹھوں سے مجبور ہو کے فرٹیلائزر ادھار پہ لیا جاتا ہے، جو ہر مہینے انٹرسٹ لگاتے ہیں 5%، اور کہاں سے کہاں جا کے پہنچ جاتی ہے ایک بیگ فرٹیلائزر کی۔ کوئی زمانہ تھا، بھٹو صاحب کا یاد آتا ہے مجھے دور، پیڈی کی رقم اس وقت تھی 13 روپے۔ آبادگار کو مدد کرنی تھی، پروڈکشن بڑھانی تھی، ایکسپورٹ سے کمانے کی نیت تھی۔ اس وقت کی حکومت نے ادارہ بنایا، RECP، یاد ہوگا سر، رائس ایکسپورٹ کارپوریشن آف پاکستان، اور رقم مقرر کر دی 30 روپے، اور ایگریکلچر میں بوم آ گیا۔ چلتی رہی رائس ایکسپورٹ کارپوریشن، پھر شکایت کی پرائیویٹ سیکٹر نے کہ رائس ایکسپورٹ کارپوریشن میں یہ خرابی ہے، وہ خرابی ہے، یہ خرابی، وہ خرابی ہے، ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم خود سے ایکسپورٹ کر سکیں۔ اس وقت کی حکومت نے کہہ دیا ٹھیک ہے، پرائیویٹ سیکٹر بھی اگر آ رہا ہے اس کو ہم ایکسپورٹ کی اجازت دیتے ہیں۔ پھر کرتے کراتے RSP گئی ختم ہو گئی، ختم، اس کی جگہ پہ بن گیا ریپ، اور وہ کرتے ہیں ایکسپورٹ، اور وہی ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے ان کے۔ میں چپ تھا کہ لوگ جو اتنے باہر نکل رہے ہیں تو وفاقی حکومت کچھ اس کا توجہ دے گی، کوئی نہ کوئی نوٹس لیا جائے گا، کوئی نہ کوئی ان کو ڈھارس بندھانے کے لیے آگے بڑھے گی بات۔ سندھ حکومت بھی اکثر کہتی رہتی ہے کہ فصلوں کی رقم ٹھیک نہیں ہے، اور میں بھی آج پیپلز پارٹی پریزیڈنٹ سندھ کی حیثیت سے وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں ایک سیکٹر کے حوالے مت کرو کہ ہم پرائیویٹ ایکسپورٹرز کے محابے پستے رہیں اور کوئی کمپٹیشن نہ ہو۔ اگر آپ ریٹ مقرر کر نہیں سکتے تو پھر اگر ہمسائے ملکوں میں حکومت خود چاول خریدتی ہے، پیڈی خریدتی ہے، وہ ایکسپورٹ کرتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ ریٹ دیتی ہے، تو یہاں پاکستان میں پھر RECP کو کیوں نہیں ریوائیو کیا جا سکتا؟ بات تو ہے پیڈی، بات تو ہے اس کی خرید کی بات، اور بات ہے آبادگار کو مدد کرنا۔ آبادگار پچھلی سیزن میں گندم کی رقم کوئی ریٹ مقرر نہیں تھا، اس سے پہلے 4000 کبھی تھا من، لیکن جب ریٹ ختم ہوا تو ٹھکا کر کے اس کو بڑھا دیا 2200 روپے پر۔
2200-2300 रुपये मन गंदम बिकी। पिछले साल पैडी जिसको 3400 पे जा रहा था उसको 1900 पर ले आए, कभी 2000 पे ले आए। ये मुसलसल कोशिश है कि आबादगार को डिस्करेज किया जाए, उनको चिल्लाने दो, उनकी आवाज़ की कोई अहमियत नहीं है। यही था चावल जो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कमा के देता था, फॉरेन एक्सचेंज कमा के देता है। अब एक तरफ से हुकूमत कह रही कि जी एक्सपोर्ट हमें बढ़ानी चाहिए, और दूसरी तरफ से जो रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले हैं उसको मार रहे हैं। मैं कुछ और ज़्यादा मेरी बात नहीं है, लेकिन इस चीज़ का मैं डिमांड वफाकी हुकूमत से कर सकता हूं और कर रहा हूं कि अभी टाइम आ गया है कि हम RACP को फिर से रिवाइव करें, एक कॉम्पिटिटिव मार्केट पैदा हो। अगर प्राइवेट सेक्टर इतना कह रहा है तो सरकारी सेक्टर क्या कर रहा है, और सो क्यों रहा है, चुप क्यों है सरकारी सेक्टर? इसकी मैं डिमांड करने की कह रहा हूं। ये भाई फसल पानी है, हर जगह पहुंचाने के लिए बहुत चीखो चिल्लाना होता है, और पहुंच गया। सुना है कि इस साल पैडी की फसल कुछ बेहतर हो रही है, बम्पर क्रॉप सी टाइम मिल गया है। दरिया में पानी था तो ज़मीनों में भी पानी आया। जैसे ज़मीनों में पानी आया तो उसमें पानी को निकालने के लिए भी चीज़ें हैं। पानी जो वाफर मिकदार में ड्रेन्स में जाता है, उसका जाना भी ज़रूरी होता है कि वो फसलों को बचाव कर सकें। जहाँ मैं RACP की डिमांड कर रहा हूँ, वहाँ मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारा एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है RBOD, जिससे पानी निकलता है, जो पैडी के इलाके में चलता है। ये राइट बैंक ऑफ रिवर पर एक ड्रेन बनने को थी जो अभी तक नहीं बनी। 2002 में ये कंसीव हुआ या शुरू हुआ। उस वक़्त सिर्फ 14 अरब रुपए की स्कीम थी। 14 अरब रुपए से बढ़ के कंप्लीट नहीं हो पाई, रिवाइज हुई 28 अरब की, फिर री रिवाइज हुई 48 पता नहीं 48 अरब रुपए, फिर री रिवाइज और फिर से री रिवाइज हुई है, अब शायद 64 अरब रुपए पे बात है। कहाँ 14 अरब, कहाँ 64 अरब। रुक गया, नैब ले गई, ऑफिसरों को सजा मिली। अभी कह रहे हैं कि जी स्टार्ट करने के लिए 200 अरब रुपए चाहिए। इतना पैसा खर्च करने के बाद ये मुंह को खाता है ये प्रोजेक्ट। ये राइट बैंक की ड्रेन और ये लेफ्ट बैंक की ड्रेन, जो हमारा सैलाब निकासी आब की बात है, वो इन दोनों ड्रेन से हो सकता था। LBO तो किसी न किसी तरह से बन ही गया, उसकी नाकामियाँ उसकी खामियाँ अपनी जगह पे हैं, लेकिन RBOD का एबंडन होना तस्वर पैदा करता है कि जिसको जैसे फेंक दिया गया है। इतने अरबों रुपए खर्च करने के बाद अगर इसको फेंक दिया जाएगा तो मेरी इस राइट बैंक की फसलों को और ज़्यादा नुकसान होगा, और ज़्यादा नुकसान होगा, आबादगार और ज़्यादा मर जाएंगे। तो जहाँ मैं RACP की बात करना चाहता हूँ, वहाँ मैं तुम्हारे RBOD की बात भी करना चाहता हूँ कि हुकूमत, सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, इस पर तवज्जो दे के इसको, इतने बड़े फ्लैगशिप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ज़रा कमर कस ले, क्योंकि इससे फ़ायदा होगा। ये जब कंसीव किया गया था तो फ़ायदा ही फ़ायदा सोच कर कंसीव किया गया था। 40 अरब रुपए के करीब जो अगर खर्च हुए हैं तो उसका कुछ नतीजा हमें मिलना चाहिए, जो अभी तक नहीं मिल रहा। मैं बारहा कह चुका हूँ PSC के लिहाज से, चीफ सेक्रेटरी को भी कह चुका हूँ, कंसल्टेंट मुकर्रर करने की एक स्टेज है। कंसल्टेंट मुकर्रर किया जाए, PD अपनी जगह पे कोई ना कोई आ ही जाएगा, और ये इस तरफ तवज्जो देकर इस चीज़ को शुरुआत की जाए। ये दो चीज़ें थीं जिसके लिए मैंने अपना फ़र्ज़ समझा कि मैं अभी अपनी आवाज़ उठाऊं
اور میں پرائم منسٹر کو کہوں یہ RECP ہوا یا RBOD بھی وفاقی اور صوبائی حکومت کا اکٹھا ملا جلا فنڈ ہے جس سے آگے بات بڑھے گی. تو جہاں میں صوبائی حکومت کے لحاظ سے چیف سیکریٹری کو کہتا ہوں اسی طرح سے وفاقی حکومت کو بھی کہنے کا حق بجانب ہوں کہ اس طرف توجہ دی جائے. تو اگر یہ ہوگا تو میرا سندھ سدھرے گا, میرا پاکستان بہتر ہوگا اور اس طرح سے ہماری جو ضروریات زندگی ہیں وہ تھوڑی سی بہتر انداز میں پوری ہو سکتی ہیں. اس لیے آپ کو تکلیف دی کہ چند الفاظ میرے میں اگر حکومت کے اس ہاؤس میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں تو پہلا میرا فرض بنتا ہے کہ میں حکومت کو باور کراؤں کہ کیا کیا اسکیمیں ہیں جو پاکستان کو مدد کر سکتی ہیں. بڑا ایشو تھا ہمارا کینیلز کا, ہم نے اس کو مناسب انداز میں اٹھایا. ہم نے وہ چاہے پریزیڈنٹ صاحب پر الزام لگایا تھا, کبھی کس پر الزام لگایا تھا, کبھی کس پر الزام لگایا تھا, لیکن ہم نے ایفرٹ کیا. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس جو نہیں ہو پا رہا تھا اس کو ہم نے منعقد کیا. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے بہت اہم فیصلہ کیا جو آپ کو شاید ابھی تک محسوس نہیں ہو رہا. پہلے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں ہوتا تھا میجورٹی ووٹ. اب انہوں نے کہا کوئی بھی واٹر پروجیکٹ اسٹارٹ نہیں ہوگا جب تک سارے صوبے راضی نہ ہوں. اور یہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کا ہم کیوں نہ کہیں کہ اس میں فائدہ ہوا. ہم نے ان کو باور کروایا, ہم نے کینالز کا ایشو کو سارٹ آؤٹ کروایا. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سے بڑا کوئی ادارہ نہیں ہے جو آئینی حیثیت رکھتا ہے. وہ پرائم منسٹر بھی وہ ماننے کو تیار, تو صدر صاحب بھی وہ ماننے کو تیار, تو ہر صوبہ ماننے کو تیار. ہم نے وہ ضرور کیا. یہ بات بھی جو ابھی میں کہہ رہا ہوں وہ بھی باور کرانے کے لحاظ سے ہے کہ حکومت کو میں یاد کرواؤں, اپنا فرض نبھاؤں, حکومت کو یاد کراؤں. اگر وہ اس پہ توجہ نہیں دیتی تو پھر اگلا مرحلہ بھی آ سکتا ہے. نئے صوبے بننے جا رہے ہیں, 27ویں ترمیم میں بھی یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ نئے صوبے بنیں گے, کراچی کو بھی وفاق کے حوالے کیا جائے گا, ساحلی پٹی جو ہے وفاق کے حوالے کی جائے گی. تو اس پر پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات سنیں ایک منٹ. ہاں آپ 27ویں ترمیم کا جو بال ہے وہ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کی کورٹ میں اچھال ڈالا ہے. اب پیپلز پارٹی ہی ہے, اگر 27ویں ترمیم کی حمایت کرتی ہے تو 18ویں ترمیم جو وہ رول بیک ہو جائے گی. میرا جواب تو سن لینا پہلے یار, سن تو لے جواب. جو 27ویں ترمیم کی بات کر رہا ہے وہ خود کر رہا ہے کہ ہم اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن شروع کیے. فائنل ڈرافٹ نہیں ہے, فائنل ڈرافٹ ابھی سامنے نہیں آیا. یہ تمہارے احسن اقبال صاحب نے آج بیان دیا ہے جو آپ نے بھی پڑھا ہوگا, میں نے بھی پڑھا. جو اخبار میں بیان دیتے ہیں وہ ریکارڈڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. فائنل ڈرافٹ نہیں ہوا. ہم نے 18ویں ترمیم پاس کرانے کے لیے ایک نیشنل کمیٹی بنائی تھی, ساری پارٹیوں پر مشتمل ایک نیشنل کمیشن تھی, اور ایسا ہی ایک مسئلہ تھا جس نے آئین بنایا. وہ بھی اسی اسمبلیوں نے مل کر متفقہ طور پر ہی صحیح اس کو آئین بنانے کا موقع ملا, جو ابھی تک کوئی بھی ملٹری ڈکٹیٹر ہو اس کو ابروگیٹ نہیں کر پایا. وقتی طور پر سائیڈ میں رکھ دیا جاتا ہوگا لیکن ابروگریشن کا کسی میں ہمت نہیں ہوئی. تو یہ آئین کا حصہ ہے 18ویں ترمیم جو نیشنل کنسنسس کے ساتھ بنائی گئی. اگر نیشنل کنسنسس کے ساتھ بنائی گئی تو ہم نے بارہا اس پہ اعلان کیا ہے ہم اس کے رول بیک کے خلاف ہیں, اس کو رول بیک کرنے کے ہم خلاف ہیں. رہی بات ترمیم کیا ہے وہ ابھی تک فائنل شکل میں کہیں سامنے نظر نہیں آئی, اس لیے ہم نے اس کے لیے 6 تاریخ کو اپنی پارٹی کی سب سے بڑا اجلاس جس کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کہتے ہیں, ہم نے وہ بلوایا ہوا ہے. شاید وہ کراچی میں ہوگا, اس میں ہم بیٹھیں گے, بات کریں گے, غور و فکر کریں گے, پھر پارٹی کی لائن آپ کے سامنے آ ہی جائے گی. کیونکہ ہم ان ساری چیزوں کو ایک یہ پوائزنس عمل ہے. آئین کو یک طرفہ چینج کرنا نہیں قبول, اور پھر اس طرح سے ڈسکشن تو ڈسکشن ہے, آئیڈیاز آتے ہیں, اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے, پارٹی اپنا موقف بناتی ہے. تو آپ کو اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے ہوگا کہ جی 27ویں ترمیم آیا فائنل شکل میں سامنے آئی بھی ہے کہ نہیں آئی, اور اس میں کہیں ہم وقت سے پہلے کوئی بیان کیوں کریں.
मैं इसलिए गुजारिश ये है कि अभी आप कह रहे हैं कि एहसान इकबाल कह रहे हैं कि अभी जो है वो फाइनल ड्राफ्ट नहीं हुआ है जो उसने कहा है, जी, और लेकिन आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इतना बड़ा ट्वीट कर दिया जिसमें सब पॉइंट्स उन्होंने नोट कर लिखी थी कि चेंजेस आ रही हैं, तो आप एहसान इकबाल की बात को मानेंगे या बिलावल भुट्टो जरदारी की? बिलावल साहब ने भी वही बात की है, उन्होंने गुफ्तगू की, हमने उस पर गौर फिक्र के लिए मीटिंग रखी। गुफ्तगू किन निकात पे हुई वो उन्हें जाके मीटिंग में बताएंगे, मीटिंग में बताएंगे। ये तो कहना गलत है कि जी बिलावल साहब ने कोई और बात। गवर्नमेंट ने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया, क्यों बता रहे कि एनएफसी में चेंज लाना चाहते हैं, सूबों के मालियाती हुकूक में कटौती करना चाहते हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने तो अपना अनाउंसमेंट दे दिया। देखिए बाबा, देखो एक मिनट, ऐलान तब होता है जब असेंबली में कोई बात पेश की जाए, इससे पहले होते हैं ख्यालात। ये लाउड थिंकिंग का एक मरहला होता है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ज़रा बात कर लें एक दूसरे से, ये इस तरह की बात है। न शहबाज शरीफ साहब ने हतमी तौर पर ड्राफ्ट दिया है, न उनके वफाकी वजीर ने हतमी ड्राफ्ट की बात की है, इसलिए आपको इंतज़ार करना चाहिए कि हमारी मीटिंग हो, उसके बाद बात। सर निसार साहब ये बताएं, आप समझ रहे हैं कि ये इनके ख्यालात हैं, तो आपके ख्यालात क्या है? क्या हुआ? ये आप समझ रहे हैं कि वफाकी हुकूमत के ख्यालात हैं, तो आपके ख्यालात क्या है? मैंने अभी आपको शायद सुना नहीं, हमने कहा कि मैं या हम 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के खिलाफ है। निसार साहब मैं करूँ सवाल। सर बात ज़ाहिर है जिस कंटेस्ट में हो रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ट्वीट का जिक्र हुआ जिसमें उन्होंने वो महकमे जो सूबों को दिए गए हैं, तालीम, मनसूबाबंदी, वो महकमे वापस करने की भी बात हो रही है। तो ज़ाहिर है एक शक्ल तो सामने आ चुकी है कि 27वीं तरमीम में सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो आप खुल के उसकी मुखालफत क्यों नहीं कर रहे? जमाल साहब, हमने कहा फलां फलां चीज़, ठीक है, उसके लिए हमने क्या रखा? मीटिंग में सारे दोस्त बैठे होंगे जो पार्टी के वफादार हैं, मुल्क के वफादार हैं। मैं उससे पहले क्यों कहूँ? फैसला आ जाए तो वो बेहतर हो ना। और फिर उसने ये नहीं कहा, बिलावल साहब की ट्वीट में ये कहीं नहीं हो गया कि मुझे फाइनल ड्राफ्ट हाथ में दिया गया, ये नहीं कहा उसने गुफ्तगू करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने यूँ कहा और उस पर खदो खाल कुछ न कुछ बताने की कोशिश की और उस पर हम मीटिंग कर रहे हैं। तो खदो खाल अपनी जगह पे, हतमी ड्राफ्ट हमारे पास नहीं है, ये अवाम को पता होना चाहिए कि हतमी ड्राफ्ट है क्या, ये छुपन छुपाई का काम नहीं चलता। अच्छा निसार साहब ये बताइएगा कि आपने काश्तकार की बात की, लेकिन सिंध में अभी तक जो है शुगर मिल्स ने ना तो शुगर मिल का कोई शुगर का जो है वो रेट तय हुआ है और ना ही जो है शुगर मिल्स अभी तक चल सकी है। जो गन्ने के काश्तकार हैं वो अभी भी परेशान है और वो आज भी सरापा एहतजाज बने हुए हैं। खड़ो साहब, देखिए मैं इसी के साथ पहले सिंध हुकूमत के एक सूबाई वजीर ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि गंदम की इमदादी कीमत 4,200 मुकर की जाए। कितनी? 4,200 गंदम की इमदादी कीमत। उसके बाद वजीर राष्ट्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 3,500 मुकर करने का ऐलान किया जी। आप मुतालबा करते रहेंगे, वफाक आपकी बातें नहीं मानेगा, ये किस तरह होगा? अभी भी आप उनसे मुतालबा कर रहे हैं। सही में दर्ज करूँ, शुगर केन की आपने बात की, शुगर केन के लिए मिल्स जो है अक्सर नवंबर के महीने में अपनी चिमनी जलाते हैं, ठीक है। शुगर केन का एक रेट 2 साल पहले अनाउंस हुआ था, 400 रुपये फी मन, वो अनाउंस हुआ है। पिछले साल कहीं कहीं किसी ज़माने में 500 भी चला गया, मार्केट डिपेंड करता है कि जी कितना मिला क्या नहीं मिला। आज डिमांड आई है कि 600 रुपये मुकर्रर किया जाए। ये कल या परसों लगी है कोई अखबार में खबर, कल परसों, बहुत दफ़ा नहीं, लेकिन 400 रेट है, मार्केट में ऊपर चढ़ जाता है। नवंबर के महीने में शुगर मिल्स को ओपन करना है, क्रशिंग शुरू होनी है और नवंबर अभी शुरू हुआ है, 2-3 तारीख है आज। बात रही गंदम की, गंदम तो पिछले साल कोई रकम ही नहीं मुकर्रर थी। पंजाब ने कह दिया हम गंदम खरीदे नहीं करेंगे और उन्होंने खोल दिया मार्केट में। हमने भी इसी तरह से किया कि जी बारदाने पे हमें गाली गलौज मिलती है, चलो खोलते हैं, ज़रा क्या असर होता है। बारदाना 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 बहुत बातें होती हैं, चलो जी खोल देते हैं।
खुलने के बाद असर क्या हुआ कि जी गंदम जो 4000 कभी जाती थी सरकारी रेट, वो सबको नहीं मिलता था, सबको नहीं मिलता था, सिर्फ वो जिनको बारदाना मिले, जो गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट की तादाद है, जो उसकी लिमिट है, अब वो मिलना ख़त्म हो गया और 2200 पे आ गए। हमने डिमांड की थी 4000 रुपया होना चाहिए। गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 3500 पे डिक्लेयर कर दिया कि जी सारे पाकिस्तान में एक ही रेट होना चाहिए, कहीं एक दूसरे में बड़ा और ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर स्मगलिंग होती है, फिर इंटर प्रोविंशियल आना जाना होता है गंदम का। अगर सिंध में 4000 रुपया होगा और पंजाब में अगर 3500 है तो जाहिर है पंजाब वाले सिंध में भेजेंगे अपनी गंदम को बेचने के लिए। इसलिए उन्होंने एक तरफा एक फैसला कर दिया कि जी हमें एक ही रेट रखना है, वो है 3500। वो मुकाबले पिछले साल के मुकाबले में तो 1200 ज़्यादा हो गया। पिछले साल कोई रेट नहीं था और हम मजबूर हो गए 2200-2300 पे गंदम बेचने पर। रख नहीं सकते अपने पास, क्योंकि हमारे पास रखने की गुंजाइश नहीं है, हम गरीब वाले, तो वो अपनी जगह पे। लेकिन अब अगर 35 है तो 35 है, सारे पाकिस्तान में एक ही रहेगा। निसार साहब ये बता दें सर, जैसे कराची के अलावा बाकी सिंध का ज़राअत अहम मसला है, इसी तरह जिस तरह कराची के अलावा बाकी सिंध के इलाकों का ज़राअत का अहम मसला है, इसी तरह कराची में एक नए सिंध हुकूमत की बातें, ट्रैफिक पुलिस ने ई चलान का सिस्टम शुरू किया है। यहाँ की कुछ जमातें और कराची के शहरी कहते हैं सड़कें तो बना ले, चलान भले कर ले। देखिए भाई, मैंने सारे कमेंट आपके सुने हैं। आप चालान नहीं इनाम दो कराची के रोडों पे चलने के। मैं उनसे भी इल्तिजा कर रहा हूँ कि ज़रा थोड़ा सा आंखें खोल के चलो। पहले जैसे कराची था अब उससे कहीं बेहतर है, अब उससे कहीं बेहतर है और उसमें आर्ग्यू की जा सकती है, उसमें आर्ग्यू की जा सकती है। कम्युनिकेशन के लिहाज से जितना कराची में डेवलपमेंट हुई है, उसने कम्युनिकेशन को कुछ न कुछ बेहतर किया है। हमें क्या क्या बैठ के मिसालें दूं, क्या क्या मिसालें दूं, बताते हुए भी अजीब सा लगता है कि मैं कहूँ जी शाहराह भुट्टो नहीं देखी। अरे भाई देखिए, अभी आपने शाहराह फैसल पहले क्या थी अब क्या है नहीं देखी, क्या केपीटी ब्रिज, क्या सोराब गोट, क्या इसके बैठ के गिनाऊँ मैं आपको? पहले नहीं था सब कुछ, अभी है। उसको सिर्फ यकसर यूँ ख़त्म कर देना कि जी कराची के रोडों पर चलने पर चालान नहीं इनाम मिलना चाहिए, ये कहना मैं समझता हूँ कुछ ज़्यादती है। हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं उसको बेहतर करने के लिए। बाकी ई चालान नहीं, किसी मुल्क में भी जाओ कैमरे लगते हैं, पुलिस वाला नहीं दिखाई देता, आपकी वायलेशन नज़र में आ जाती है और आपके घर पे आ जाता है कोई ना कोई आपकी फाइंडिंग। अब मसला क्या है कि जी फाइन ज़्यादा ना लो। मैं तो ये समझाऊं ई चालान में और कोई ख़राबी नहीं है, सिर्फ ये डिमांड कि जी बहुत ज़्यादा चालान की फ़ी है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब तक चालान ज़्यादा नहीं होगा तब तक हम ठीक भी नहीं होंगे। आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है, आपने 18वीं तरमीम की तो बात कर ली, लेकिन बड़ा इशू जो है वो सूबों का है। क्या आप जो सेंट्रल एजुकेटिव कमेटी का इजलास होने जा रहा है उसमें जो सूबे बनने जा रहे हैं उस हवाले से कोई वक़्फ़ रखेंगे कि सूबे सिंध में मजीद ना बनने? और अगर मैं कहूँ कि सूबे बनने नहीं जा रहे, आगे बोलो। साहब एक सवाल ले लीजिए, आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, आप बड़ी रिकवरियां भी करा रहे हैं, आपने सुना है कि आपको बहुत ज्यादा कुछ लोग अपोज कर रहे हैं विद इन पार्टी, आपके मुखालिफिन जो है वो बड़ा कोशिश में लगे हैं कि आपसे ओहदा ले लिया जाए वापस। बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पीएससी के फाजिल मेंबर हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने 1.5 साल या 1.25 साल हुआ है, 1.25 साल हुआ है, जुलाई में साल पूरा हुआ, अभी नवंबर है। इस नवंबर के महीने तक
मैंने सिंध हुकूमत को 26 अरब रुपए कमा के दिए हैं। अगर इसमें मेरा कसूर है नहीं, आपका कसूर तो है, क्यों? तो दे दो सजा। एक मिनट, चोरी हजारों अरबों की चोरी। आराम से बैठो, आराम से बैठ बाबा, एक आराम से मेरी बात पूरी करने दो, मेरी बात पूरी करने दो। प्रॉब्लम ये है कि ये 2008 से हमारे हिसाब किताब पेंडिंग है और इसमें 3 PSCs पहले 5-5 साल के लिए काम किए, PSCs काम किए। मैं उन पर हमला नहीं करता, मैं उनको नुक्तेचीनी का निशाना नहीं बना रहा, लेकिन उन 10 सालों में 1 अरब हुआ था रिकवरी। मैंने अगर 26 अरब रुपए कमा के और रिकवरी करवाई है तो मैं अपने चेयरमैन के सामने जवाब दूँ, वो जो करें ठीक है। निसार साहब, मुख्तलिफ थ्योरीज जो हैं, जब तरामीम की बात आती है तो मुख्तलिफ थ्योरीज जो है वो लाई जाती हैं मैदान में। इस वक्त जिस तरह नए सूबों की बात हो रही है, इस तरह सदारती निज़ाम की भी बात हो रही है, पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट पाकिस्तान बनाने की भी बातें हो रही हैं, तो इस पर क्या कहें? अब बाबा खुदा का वास्ता है यार, आज एक और भी बयान पढ़ लो कि हमें सियासत से दूर रखो। किसने दिया है? किसने दिया है? बड़ी सरकार। बड़ी सरकार नहीं, किसने दिया? नाम लो। बड़ी सरकार नहीं, बोलो ना यार। ISPR बोलो। ISPR में बोलने में क्या खराबी है? उसका बयान छपा है अखबार में, उसको छुपाने की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा सियासत से हमें दूर रखो, ये काम है पार्लियामेंट का और हुकूमत का, ठीक है, इसलिए उनको रखो। बड़ी सरकार छोटी सरकार कुछ नहीं है, अवाम है सरकार, अवाम है सरकार, उसी पे चलेगा। रही बात कोई सूबे मैं नहीं समझता कि बन रहे, वो मैंने कह दी बात, लेकिन मैं आया था बेचारे हारियों के मदद में यार, मैं आया था उन ज़राअत पेशा लोगों के मदद में, मैं आया था उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए, और हो सकता है मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को खत भी लिख दूं। लेकिन अभी ये जिस बयान का जिक्र किया कि अखबार में छपा है, जिस बयान का भी आपने जिक्र किया, किसका? जिस बयान का भी आपने जिक्र किया कि किसी ने छपा है अभी हाँ। सियासत से, क्या आप समझते हैं ये वाकई सियासत से ताल्लुक है? क्या आप समझते हैं कि वाकई कोई सियासत से ताल्लुक है? भाई मैं जो अखबार में छपता है ना, मैं उसको कोट करता हूँ, मैं दूसरी बातों पे नहीं जाता। अखबार में छपा वो रिकॉर्ड की बात है। इसी तरह से एक खबर छपी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम न्यूट्रल रहेंगे, कहा था, इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो अखबार हो सब में आया था, मैं उसको कोट करूंगा बस। चावल के रेट तो वैसे भी कम है, लेकिन ज़राअत को जाली अद्वियात ने जो तबाह किया है उसके लिए क्या एक्शन लेंगे? मैं समझा नहीं। जाली अद्वियात, हाँ? एक मिनट क्या? दवाई जो बनती है वो जाली है, बहुत ज्यादा जाली अद्वियात जाली ज़राअत के लिए ये है नाकामी उनकी, जो बनाते हैं उन पर नजर होनी चाहिए हुकूमत की, उनकी क्वालिटी देखें। एक मिनट बाबा, एक मिनट। जो भी अद्वियात बनती हैं इसी तरह से शिकायत तो फिर फर्टिलाइज़र पे भी थी कि वो जो फ़ायदा देना चाहिए वो नहीं देता। तो ये हुकूमत का काम है, सूबाई हो चाहे वफाकी हो, उनकी क्वालिटी को देखे। जैसे फूड अथॉरिटी, सिंध फूड अथॉरिटी के लिए क्या होता है, क्वालिटी चेक करे, उनकी भी क्वालिटी चेक हो सकती है जिसमें इनकी शिकायत दूर हो सकती है, इसमें क्या। अब मैं आपसे सिर्फ यही बात कर रहा हूँ कि खुदारा जहाँ लोग भूख से और बेरोजगारी से तंग हैं, आइए सब मिलकर उन किसानों की थोड़ी सी मदद में अपना थोड़ा सा टाइम लगाएं। ये दूसरी चीज है। हाँ, और जी हारी साहब, अभी आपकी 15 साल से गवर्नमेंट है और आपको आज याद आया है, लेकिन वफाकी हुकूमत जो है कह रहे हैं कि वो काम नहीं कर रही, लेकिन अगर आप अपनी पे आए तो इमेजिनर रोड का काम बंद करा देते हैं। मुझे पता है कि सही आप डोकरी से आए हुए हो, लेकिन ये इशू जो बना है
वो आज बना है, पहले ऐसे इशू था नहीं, इसलिए हमने उठाया नहीं। अगर आज कोई रोड पर खड़ा है तो जरूर कोई उसके पीछे मकसद होगा, जरूर उसके बाद कोई सद्भाव करना चाहिए, हमने इस वजह से हाथ उठाया। लापता किया जा रहा है और अदालत के जो अहकाम है उनको भी नहीं माना जा रहा। 2 नौजवान कुछ दिन पहले जो कानून को उठाया था और उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने आरोप किया था कि उनको रिलीज किया जाए, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसी है वो उनको नहीं छोड़ रही। कानून की हुक्मरानी पर अमल करो, कानून की हुक्मरानी पर अमल करो। कानून की